Good afternoon, students. Today we will start History, Chapter 2, Nationalism in India. I hope all of you know the meaning of nationalism. I explained you in detail what is nationalism. I repeat again for you what is nationalism. Nationalism means feeling of oneness based on shared social characteristics of culture, ethnicity, geographic location, language, politics, religion, traditions, and belief in shared history. Nationalism in Europe. Introduction. Nationalism is loyalty and devotion to a nation. In this chapter, we will pick up the story from 1920s and the study the non-cooperation movement and civil disobedience movements. We will learn that how different social groups participated in the movement. Nationalism in Europe. We have learned in the previous chapter how nationalism emerged in India. We will see now. In India, the growth of nationalism is closely connected to the anti-colonial movement. Colonization affected people's freedom. The sense of oppression and exploitation became a common bond for people of different groups, which resulted in the growth of nationalist ideas. In India, each class and group felt the effects of colonialism differently because the thinking of people not same everywhere. Therefore, the experiences of people were different and their belief about freedom also not same. Congress Party and Gandhiji tried to unite the different groups of our country within one movement. In this chapter, we study about the movements of Gandhiji, non-cooperation movement and civil disobedience movement. Introduction to nationalism in India. When the First World War broke out in 1919 in Europe, it had far-reaching consequences in the entire world. It was actually could have said to ignite the fight for Indians' independence. It ignited the spirit of nationalism in India due to the emergence of Satyagraha and non-cooperation movement. Let us take a look. The first World War, Khilafat and non-cooperation movement. And impact of the First World War on society. Between 1913 to 1918, the prices of food grains increased largely, which led to extreme hardship for the common people. The peasantry suffered from heavy rents and taxes. Villages were called upon to supply soldiers. This forced recruitment in rural areas caused widespread anger. After the war, foreign goods once again began to be imported and foreign capital began to be invested in a large scale. Indian industries faced heavy losses and even closure. Now we see it in detail. The First World War fought in the year 1914 to 1918, and after that the national movements spreading to new areas and new spatial social groups and developing new methods of struggle. The First World War created a new economic and political situation. A huge amount of money was spent on defense and
At that time, money was taken by the people who gave loans. To pay these loans, taxes were increased, like income tax and custom duties were also increased. During the time of war, prices of everything increased at a very high level. Between 1913 to 18, the condition of common man was very miserable. Why? Because prices increased. Understand? And the village people were called for the supply of soldiers. And the forced recruitment means forcibly they are recruited in army against their wish. And in rural areas, this caused widespread anger. And a new thing happened in 1918 and 1919 and 2021. Crops failed in many parts of India, resulting acute shortage of food. And this was also a new crisis known as influenza epidemic. And according to the census of 1921, 12 to 13 million people lost their lives as a result of famines and the epidemic. And therefore, people hoped that their hardship would end after the war was over. But that did not happen. And in this situation, the people wanted a strong leader, and therefore at this stage a new leader arose and suggested a new mode of struggle. And who was that person, or who is the leader, or who was the leader? महात्मा गांधी. भारत में राष्ट्रवाद. जब 1919 में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो पूरी दुनिया में इसके दूरगामी परिणाम हुए. यह वास्तव में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को प्रज्वलित करने के लिए कहा जा सकता था. इसने सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के उदय के कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित किया. आइए एक नज़र डालते हैं. भारत में राष्ट्रवाद. अब आप लोगों को पता होना चाहिए ना राष्ट्रवाद यानी क्या. आपको इसके पहले भी विस्तार से आपको राष्ट्रवाद क्या है ये समझा दिया गया है जब हमने फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा. तो फिर से एक बार आपको बता दें कि राष्ट्रवाद यानी क्या कि विशेष एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भले ही उनका अलग अलग रहन सहन हो, उनके अलग भाषाएं हो, उनका सभी इसमें अलगाव हो, पर फिर भी सबके दिलों में एक भावना होती है कि हम इस राष्ट्र के निवासी हैं. हम अगर भारत की बात करें तो आप सब लोग जानते हो कि भारत में अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग संस्कृति को अपनाने वाले लोग एक साथ भारत में रहते हैं. और ये सब उनका अलग अलग होने के बावजूद में भी उनमें एक भावना होती है कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं. इसे ही कहा जाता है राष्ट्रवाद. तो आप समझ गए होंगे कि भले ही सब चीज़ें एक दूसरे से अलग अलग हो, पर सबके दिल में भावना एक होती है कि हम इस राष्ट्र के हैं. इसको कहा जाता है राष्ट्रवाद. अब अगर हम राष्ट्रवाद भारत में
कैसे ये विचार जो है वो भारत में कैसे प्रज्वलित हुआ। तो अगर हम देखते हैं कि भाई राष्ट्रवाद का उदय भारत में कैसे हुआ, तो इसके लिए हमको क्या समझना होगा कि दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर से जुड़ी हुई थी। अब ये औपनिवेशक या उपनिवेशवाद यानी क्या बेटा, तो इसको कहा जाता है कॉलोनीज़। मतलब क्या कि दूसरे देशों के लोग आकर अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए किसी और देश में अपने निवेश को स्थापित करते हैं, उसे कहा जाता है उपनिवेशवाद। अब अगर हम देखें कि भारत में क्या हुआ, तो भारत में सभी वर्ग के लोगों के ऊपर या समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था और उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता की जो उनके विचार है वो भी अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। अब हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। तो अब ये देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसीलिए देखो समाज पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। 1913 से 18 के बीच खाद्यान्नों की कीमतों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई, जिससे आम लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। किसानों को भारी लगान और करों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों को सैनिकों की आपूर्ति के लिए बुलाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस जबरन भर्ती से व्यापक आक्रोश फैल गया। युद्ध के बाद एक बार फिर विदेशी वस्तुओं का आयात होने लगा और विदेशी पूंजी का बड़े पैमाने पर निवेश होने लगा। भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान और यहाँ तक कि बंद का सामना भी करना पड़ा। अब हम देखते हैं, देखो सबसे पहली बात क्या हुआ, देखो कि विश्व युद्ध ने ऐसी आर्थिक और राजनैतिक स्थिति पैदा कर दी थी। कैसी स्थिति पैदा कर दी थी बेटा, तो आपने देखा होगा कि किसी भी देश का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है उसकी सुरक्षा पर। तो विश्व युद्ध में क्या हुआ, सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा खर्च हुआ और खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों से कर्जा लेके, जो कर्जा देते थे उनसे कर्ज लिए गए। अब क्या हो गया कि कर्जा बढ़ गया, इसके कारण फिर सरकार ने क्या किया, तो करों में वृद्धि कर दी, मतलब करों को बढ़ा दिया गया। कौन से करों को, तो जैसे सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। ये नया कर शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि युद्ध पे जो खर्चे हुए उसकी भरपाई करने के लिए ये कर शुरू किया गया। और 1913 से 18 के बीच में क्या हो गई थी, सभी चीज़ों के दाम बढ़ गए थे। और क्या हुआ था कि इसके लिए आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गाँव में क्या किया था, गांव के लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया था, जिससे लोग क्या थे, नाराज़ थे। और इसी के साथ एक और कारण हुआ कि देश के बहुत सारे हिस्सों में 1920 और 21 में क्या हुआ, फसल खराब हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हुआ और एक संकट आ गया, उसको कहते हैं हम फ्लू या महामारी। और 1921 की जनगणना के मुताबिक इन सारे ये जो महामारी और फसल खराब हो गई थी, इसका
ये असर हुआ कि करीब करीब 120 से लेके 130 लाख तक लोग क्या हुए, मारे गए या उनकी मौत हुई। अब लोगों को ऐसे लग रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ी, तो इसीलिए उनको एक नए नेता की ज़रूरत पड़ी। और उसी समय एक नया नेता उभर कर सामने आया जिनका नाम था महात्मा गांधी। जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो सबसे पहले उनके क्या विचार थे ये जानना ज़रूरी है। और इसीलिए उनका जो पहला विचार है उसको कहा जाता है सत्याग्रह, उसको कहा जाता है सत्याग्रह। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे हिंदी में। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, उसके पहले हम देखते इमर्जेंस ऑफ महात्मा गांधी। फर्स्ट वी सी इमर्जेंस ऑफ महात्मा गांधी। In such critical social conditions, a new leader, Mohandas Karamchand Gandhi, appeared. He suggested a new method of action and he was popularly known as Bapu or Mahatma. The idea of Satyagraha. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. His heroic fight for the Indians in South Africa was well known. His novel method of mass agitation known as Satyagraha had yielded good results. Satyagraha was method of agitation and protest based on truth and non-violence. It was passive resistance consisting of defiance of law, non-payment of taxes, boycott of government institutions. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Without being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. महात्मा गांधी का उदय। ऐसी विकट सामाजिक परिस्थितियों में एक नए नेता मोहनदास करमचंद गांधी सामने आए। उन्होंने कार्रवाई का एक नया तरीका सुझाया और उन्हें बापू या महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता था। सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौट आए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए उनकी वीरतापूर्ण लड़ाई प्रसिद्ध थी। सत्याग्रह के रूप में जाने वाली जन आंदोलन की उनकी उपन्यास पद्धति के अच्छे परिणाम मिले थे। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन और विरोध का तरीका था। यह निष्क्रिय प्रतिरोध था जिसमें कानूनों की अवहेलना, करों का भुगतान न करना, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार आदि शामिल थे। इसने सुझाव दिया कि यदि कारण सही था, यदि संघर्ष अन्याय के खिलाफ था, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से लड़ाई जीत सकता था। महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि गांधी जी जब नेता बनकर आए तो उन्होंने क्या क्या किया। तो देखते हैं हम। 1919 में नए क्षेत्रों में राष्ट्रवाद विकसित हो रहा था
और नए सामाजिक समूह और संघर्ष के नए तरीके विकसित हो रहे थे। मोहनदास करमचंद गांधी भारत आए और उनके साथ सत्याग्रह का विचार सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की तात्कालिकता पर केंद्रित था। इस विचार ने सत्य की शक्ति को थोपा और लोगों को सत्य खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि उपनिवेशवादियों से लड़ने के लिए शारीरिक बल आवश्यक कदम नहीं था। 1916 में उन्होंने किसानों को दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चंपारण, बिहार की यात्रा की। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें और सरकार को भू राजस्व देने से इनकार कर दिया और इसके पूर्ण संग्रह पर दबाव डाला। 1918 में गांधी उस विवाद के बीच आ गए जिसमें अहमदाबाद के मजदूर और मील मालिक शामिल थे। उन्होंने श्रमिकों को हड़ताल पर जाने और वेतन में 35% वृद्धि की मांग करने की सलाह दी। इससे वह कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों के भी करीब आ गए।